Okay, the recording is on. For your information, please. Okay, let's wait for a couple of more minutes by the time people come in, and then we can get going. Tab tak, those of you who are in the class, maybe you can give me the value of GZ that you would have calculated for that particular question, and I can take that down on the board. For 87 question, I had requested you to do part 1 and 2 of that question. So basically what I'll be interested in would be the GZ values for 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 60 and 75. So can somebody help me out with the values, beta? 0 obviously would be 0, 0, 0. How much is for 5 degrees, beta? So 0.096. Sorry, 0 point? 0.96. 0.96. Thank you. 10 degrees, 0 point? 0.193. 193. 15 degrees, beta? 0.279. 279. Okay. 20. 0.383. Okay, beta. 25. 0.407. Okay, 407. 30. 0.501. Okay, beta. 40 degrees. 598. 0.598. 598. Okay, beta. 598. Okay, it's 40. 588. 588 is 45 degrees. 60 degrees. 425. 425 and finally 75, beta. 0.053. Plus, not minus, right? Yes, sir. All plus. Okay, all plus. Sometimes the last two values may go negative also. So anyway, let the people join in. In the meantime, let me graduate my table here. And let me try and draw the curve, which we have already discussed. So there is nothing much for me to share. Let's say here is 80. I am intentionally keeping some space here for explanation purposes because I don't want to rub out the curve time and again. So little bit of squeezing in on the scale is being done. Point 6. Okay, maybe 0.1 here. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 0.6 and maybe 0.7 if required. This will be GZ in meters. This is theta in degrees, which we've already discussed. Then it's 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 meters. It's 0 obviously here. Then it's 0.96 almost coming somewhere here. Okay. Then 193 somewhere here. 10 degrees. Then 279, 2.8, 2.79 for 20, somewhere here. For 20, no, this is 15 degrees, sorry, my mistake. First is for 10 degrees, then 15 degrees. It should be for 15 degrees, not here. So first will be for 5 degrees. Yeah, first is for 5 degrees. That's correct. This is for 5 degrees, better. This is for 10 degrees. 0.9. First is 0.0097. 0.097 is almost 0.1. So 0.1, yes, sir. 10 degrees के लिए आएगा 193 somewhere here. 193, yes. Somewhere here.
279 is for 15. 15 goes here. 279 would be 2.8 के आसपास. यहाँ पर कहीं आएगा. 383 20 degrees. Somewhere here again 3.8 or so. Then 407. That means almost 4 is for 25 degrees. So somewhere here it comes. Not too far. 0.5. 5 is somewhere here for 30 degrees. Then 6.98. 598 so 0.6 हो गया almost. या 40 के लिए. Then थोड़ा सा इससे कम 45 के लिए. 425 1 2 somewhere here. 60 के लिए. 75 and 0. This is 75 degrees. Now, when you run your marker on it, if something is slightly, दोनों तरफ से देख लो इसको. Then once you get the confidence, you can just try joining it. Even if something is being left out slightly, it's not an issue. Almost. ये 25 वाली थोड़ी सी मेरी लाइन को छोड़ रही है. छोड़ने तो कोई बात नहीं. 25 वाली वैल्यू थोड़ी सी ऑफ द लाइन. ऐसे मैंने इसको फेयर कर दिया. Something like this will be the GZ curve, guys. Yes, sir. Okay, so that is, yeah, that is part 1. Part 2 question. हाँ बेटा. सर आप इसमें जो 5 डिग्री जैसे आपने पिछली बार सिखाया था, थोड़ा सा नीचे से नहीं बनाओगे सर इसको? बेटा यहाँ से थोड़ा सा लेना है ले लो. इसमें मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, because the question does not bother me much, right? Yes, sir. 0.1 ही आ रहा है almost. 5 अगर देखा जाए तो 0.1 ही है. बेसिकली तुम इसको यूं करके भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रीजन बीइंग मेरा इसमें because I am not going to use this curve for finding the initial metacentric height, right बेटा? Yes, sir. ठीक है सर. हाँ, that plays, the shape becomes very very significant. अगर मेरा पिछला क्वेश्चन याद करो, where it comes to finding the estimating the GM, it assumes lot of. हाँ सर. और अगर वो होगा ना तो फिर मैं इसको और फैलाऊंगा x एक्सिस के स्केल को. एक्चुअली सर हमने जो फैलाया वो हमने एक्चुअली बहुत फैलाया है सर एक्सिस के. तो हमारा डायग्राम जो है थोड़ा और कर्व होके आया होगा ना. वही मैं कह रहा हूँ ना बेटा. मैंने इसको स्क्वीज इन कर दिया है ना. इस चक्कर में वो नहीं दिखाई दे रहा है. I'm telling you why it's not visible, right? हाँ बोलो बेटा. ये जो ग्रेजुएटेड स्केल है सर, ये कितने भी ले ले, जैसे 1 सेंटीमीटर लिया 10 डिग्री, फिर 2 सेंटीमीटर 20. कल मैंने क्या कहा था बेटा? परसों बड़ा लो तो ज्यादा अच्छा है. बस वही है. अब मैं कितना बताऊं कि 1 सेंटीमीटर कितना लोगे, वो तो आपने डिसाइड करना है ना, आपके पेपर के साइज के ऊपर, राइट? यस सर. है ना बेटा. अब इसमें मैं वही बता रहा हूँ, ये देखो ना 0.96 का डबल कितना होता है? 12, 18 और 1 19 हासिल 1.192. ये ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है, राइट? इसमें इतना, बट इसको भी अगर तुम स्प्रेड करोगे तो थोड़ा बहुत शेप आ जाएगा. बट यहाँ पर वेदर आई डू इट लाइक दिस और आई डू इट लाइक दिस, इट डज नॉट मेक एनी मटेरियल डिफरेंस बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर एस्टिमेटिंग द GM, राइट बेटा? यस सर. ओके सर इसमें मैंने कर्व नहीं करा क्योंकि 5 डिग्री का ऑलरेडी इसमें प्लॉट है. तो 5 डिग्री के हिसाब से तो हम लोग कर्व करते थे, बट अभी तो इसमें ऑलरेडी है और वो स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है. स्ट्रेट लाइन ही. हाँ स्ट्रेट लाइन. हाँ, पर अगर मैं इसको बेटा अगर एक्सपेंड कर दूंगा तो 0 और 5 के बीच में थोड़ा सा मैं कॉन्केव ले सकता हूँ, राइट? ओके. मतलब आप इसको और बड़े स्केल पे बेसिकली ले लेंगे अगर x एक्सिस को स्प्रेड आउट कर दूं तो. हाँ जी समझ गया सर. Then the question I think it asks what is the maximum GZ? सर 0.6 या जो भी कुछ है. यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे. हाँ सर. यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे x एक्सिस के पैरेलल, जो भी 0.6 0.61 जो भी तुम्हारे 0.61 0.6 जो भी आपका आ रहा है, whatever somebody will take perpendicular. Somebody will get 0.5 0.61, somebody will get 0.6. both are good enough. Okay. Then यहाँ जो point of tangency है, यहाँ से you'll come down vertically. ठीक है सर. किसी का 41 डिग्री,
किसी का 41 आएगा, किसी का 42 आएगा, बोथ आर गुड इनफ, किसी का 43 भी आ सकता है। 45 आया है। 45 तो नहीं आएगा, 45 पे तो ये वैल्यू दी हुई है। 588 कैसे मैक्सिमम हो सकता है? कैसे हो सकता है? 45 पे मैक्सिमम कैसे हो सकता है बेटा, बताओ। मेरा 45 है। नहीं कैसे हो सकता है? 45 पे तो 0.88 है, जो 0.98 से कम ऑलरेडी हो चुका है। हाउ कैन 0.588 बिकम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GZ? मैं सर समझ गया आपकी बात, बट मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ, तुम्हारी कर्व में गड़बड़ होगी ना। द मैक्सिमम विल बी बिटवीन 40 एंड 45 बिकॉज 40 पे 0.598 है, यहाँ कम हो गया है, तो मैक्सिमम या तो 40 पे होगा या 40 और इसके बीच में होगा। करेक्ट? बिल्कुल सर। यस सर, करेक्ट सर, समझ गया। है ना? लेकिन सर कर्व जैसे ड्रॉ करें तो उसका एक हल्का सा ऊपर आके फिर नीचे आ रहा है, तो वही है सर। करेक्ट। सडनली आई कैन नॉट मेक इट लाइक दिस, यू नो, लाइक दिस। यस सर। ठीक है। सो दैट इज व्हाट वाज ये जीजेड की वैल्यू 25 पे जो कम आ रही है थोड़ी सी, तो हमको मैंने छोड़ दी बार रहेगी तो छोड़ दी, वो सर ने बाहर छोड़ दी, बोला प्लॉट करके वहीं छोड़ दी मैंने। कोई बात नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू इट लाइक दिस, डोंट डू दिस। ये ऐसे करने की कोशिश मत करना इसको। हाँ सर। एग्जाम में भी नहीं करेंगे सर? नहीं बेटा, अगर मैंने वैल्यूज को ही स्ट्रेट लाइन से अगर मैच करना था तो फिर तो लीनियर इंटरपोलेशन हो जाती है ना, फिर कर्व क्यों चाहिए? तो वही आपने परसों भी वही बोला था कि ये गलती मत करना, कर्व ही लेना। अगर मैं इन दो को स्केल रख के ही ज्वाइन करूंगा तो फिर मुझे कर्व क्यों ड्रॉ करनी? फिर तो स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर इंटरपोलेशन है, रेट ऑफ चेंज इज यूनिफॉर्म, लीनियर इंटरपोलेशन हो जाएगी वो तो। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन से वो टच नहीं होगा अगर मतलब जो नॉर्मल कर्व बनाएंगे तो नहीं होगा ना, तो तभी तो कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन से नहीं करना। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कब कहा स्ट्रेट लाइन से टच करो? नहीं, मतलब सर जो जैसे 0.4 वाला जो पॉइंट है उसके आगे वाला देखिए रह गया ना, मेरी डायग्राम में भी तो बाहर पड़ा हुआ है अलग से। I have not forced my curve to go over it, ना? Correct? यस सर। ठीक है बेटा। Okay, next part क्या है क्वेश्चन का बेटा? The next part is angle of vanishing stability. Angle of vanishing stability ये 75 के बाद है, 75 77 76 77 78 जो भी आपके ग्राफ से हो रहा है, that is the answer to it. तो किसी का 77.5 भी निकला था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, वो ग्राफ से इतना आ जाएगा, ग्राफ से इतना वेरिएंस आ जाएगा, बट ऑब्वियसली 75 से कम करोगे तो फिर यू आर कीपिंग योर आईज शट, क्योंकि 75 पे तो पॉजिटिव है, तो वहां तो वैनिशिंग हो ही नहीं सकता ना। सर 77.5 भी चलेगा सर, अगर आंसर आ रहा है तो। बेटा वो ग्राफ पे डिपेंड करता, चलेगा 77.5 भी। ओके, 76 भी चलेगा, 77 भी चलेगा, 78 भी चलेगा। ठीक है सर, बट डेफिनेटली 75 नहीं चलेगा, 5 से कम नहीं होगा। यस सर, ठीक है। ओके, दैट इज नंबर 2। व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? सर अपसेटिंग लीवर निकालना है। द चेंज इन द रेंज ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन अ कांस्टेंट upsetting moment of 4,500 tons meter is applied to the ship. Okay, upsetting moment. अब ये upsetting moment word मैंने शायद पहले भी यूज किया है। ये किसका भाई बंद है? ये किसका काउंटर पार्ट है? upsetting moment क्या होता है? Which is trying to upset the ship, ना? Upset the ship, capsize. Which is trying to incline the ship, right? Incline the ship, yes sir. तो ये किसको अपोज करेगा? Righting moment. Righting moment will oppose the inclination. Yes sir. Upsetting moment will try to incline the vessel. Righting moment will tend to oppose it, right? Oppose it, yes sir. तो इसका मतलब you agree कि righting moment और upsetting moment दोनों हैं similar चीजें हैं, मतलब as far as their behavior is concerned, they're reversely proportional. Reversely proportional. They are basically identical things. Only thing is they are acting in opposite directions, right? Yes. Okay. Okay. Now you are all aware of what is the formula for righting moment? Moment of a couple. Moment of a couple. हाँ तो क्या formula क्या हुआ? W into perpendicular distance. So what is the perpendicular distance between what? Perpendicular distance between what? सर राइटिंग लीवर ये देखना पड़ेगा ना सर किसका? अरे आई एम आस्किंग यू perpendicular distance between what? सर between the couples. Between the couples. कपल तो दोनों मिलके एक कपल बनते, कपल्स कहाँ से हो गए? सर एक जो कपल का जो perpendicular distance है किसके बीच में?
जो पैरेलल फोर्सेस हैं, ऑपोजिट फोर्सेस हैं कपल में, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे केस में उसको क्या बोलते हैं, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को? लीवर। लिवर के, और लिवर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इतनी क्या तुम सोच रहे हो? अरे लिवर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे? डायग्राम याद करो परसों जो पहले क्लास वाली। W into GM into sin theta जो लगाते थे। GZ इज द लिवर यार। लिवर, हाँ सर, GZ लिवर है। GZ इज द लिवर भाई। इतना क्यों हर चीज को सोचते क्यों कि तुम्हें फंसाया जा रहा है हर चीज में? You agree this is the writing moment? Yes sir. And what in if this is writing moment, what is this called? इसका सही नाम क्या होगा अगर ये writing moment है तो? Writing liver. Writing liver. Okay, very good. शाबाश. Okay, so writing liver equals to writing moment upon displacement. अगर upsetting moment writing moment का भाई बहन है, healing moment बोल लो, upsetting moment बोल लो, तो upsetting moment भी किसके बराबर होगा? Drawing the same parallel as upsetting liver into displacement will be equal to W into upsetting liver. Yes or no? Upsetting liver. Yes sir. Everybody agrees with him? Yes sir. Okay. This implies the upsetting liver would be equal to upsetting moment, which is 4,500 ton meter. Displacement कितनी थी ship की? 18529. So many meter will be the upsetting liver. Can you give me the value of upsetting liver? बेटा calculator पे निकाल के. 4500 divided by 18529. Sir, 0.243. 243 meters. Any questions on this before I proceed further? Upsetting liver. Do you agree upsetting liver is the counterpart of writing liver? Yes or no? Yes sir. Yes sir, agreed on that. Okay. So अगर किसी given scenario में ship पे, okay, अगर given scenario में ship में किसी angle of heel पे अगर upsetting liver 0 होगा, अगर upsetting liver 0 होगा किसी angle of heel पे, तो वहां उसका resultant liver किसके बराबर होगा? Writing liver के बराबर? Yes sir. Yes sir. Correct? मान लो 10 डिग्री स्टेटमेंट अभी आपने अगर शिप किसी भी एंगल पे हील हो रखा है, सपोज किसी भी कारण से, ठीक है, अब तुम कहोगे क्यों हील हुआ बिना अपसेटिंग मोमेंट के, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए. अगर शिप, या चलो अपराइट में आ जाओ. अपराइट कंडीशन में व्हाट इज द राइटिंग लिवर? हाउ मच इज द राइटिंग लिवर अपराइट कंडीशन में? 0 सर. 0. शाबाश शाबाश. और इस क्वेश्चन में अपराइट कंडीशन पे जहाज पे 4500 टन मीटर का मोमेंट लग रहा है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिवर है 0.243 मीटर्स. करेक्ट? यस सर. तो इन दिस सिनेरियो व्हेन द अपसेटिंग मोमेंट इज एक्टिंग इन द अपराइट कंडीशन, द वेसल हैज अ अपसेटिंग लिवर ऑफ 0.243 मीटर्स, राइट? ओके. ठीक है बेटा? ठीक है. एंड क्वेश्चन इज सेइंग दिस 4500 टन मीटर रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of angle of heel, right? Yes sir. If the ship now, because of this upsetting moment, heels to 5 degrees, so look at the board. When she heels to 5 degrees, what will be the righting moment in existence? Be careful about what I'm asking. What will be the righting moment in existence? 0.096? 0.096 plus 0.243. And what will be the upsetting liver in existence? 0.243. 0.243. What will be the net liver experienced by the vessel? दोनों को ऐड कर देंगे. दोनों को ऐड कर देंगे. अगर ऑपोजिट है तो ऐड कर दोगे? नहीं, ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी. तो what will be the net liver experienced by the vessel if she heels to 5 degrees angle of heel? It will be upset. समझ में नहीं आया सर. अरे समझ में नहीं आया. जब ये अपसेटिंग मोमेंट लगा, 7. जब अपसेटिंग मोमेंट लगा तो शिप हील हुआ. करेक्ट? यस सर. तो अगर हील हुआ तो जब 5 डिग्री हील हो गया तो मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द राइटिंग लिवर एट दैट पॉइंट इन टाइम? राइटिंग लिवर तो सर वो अपना जो GZ आया 0.0. कितना है यार? वैल्यू बोल देना यार. 0.096. हाँ तो 0.096. इतना लंबा सेंटेंस बोलने के बजाय 0.096 बोल देना भाई. ठीक है सर. Okay, and what will be the upsetting liver?
at 5 degrees angle of heel, and 0.243. अब 0.243. जब दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं तो there will be they will cancel out each other, yes or no? Yes, sir. So what will be the net liver experienced by the vessel at 5 degrees angle of heel? 0.147. 0.147 of upsetting liver, right? Upsetting liver. Upsetting liver. Upsetting liver हो गया. ठीक है, तो अगर राइटिंग लिवर पॉजिटिव था तो अपसेटिंग लिवर नेगेटिव होगा नेचुरली. Negative. Yes, तो sir. देखो ये पार्ट बोर्ड का दिखाई दे रहा है, जहाँ मेरा मार्कर है दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर. हाँ सर. तो अब ये देखो 0.1 0.2 शायद अब ना दिखाई दे रहा हूँ नीचे का. अपराइट कंडीशन में राइटिंग लिवर इज 0, upsetting liver is 0.243. So that means the net liver experienced by the vessel would be minus 0.243, correct beta? 0.243, okay. That means ये liver effectively यहाँ आ गया नीचे, correct? By 0.243. ठीक है सर. At 5 degrees इतना writing liver है और इसके ऊपर 0.243 upsetting liver लग रहा है, तो that means 0.147. ये भी 0.4 माइनस 147. बेसिकली यहाँ से 0.243 नीचे आ जाएगा. Yes sir, correct. ये यहाँ से 0.243 नीचे आया, ये यहाँ से 0.243 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से 0.243 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से 0.243 नीचे आ जाएगा, ये सारे 0.243 रिस्पेक्टिवली नीचे आ जाएंगे. बिल्कुल ठीक है सर. और जब मैं उनको ज्वाइन करूंगा तो ऑलमोस्ट एक और ग्राफ बन जाएगा. इस कर्व के पैरेलल एक कर्व बनेगा. यस सर. जो जहां भी बनेगा, करेक्ट. यस सर. ठीक है. ये कर्व कब के लिए होगी? जब अपसेटिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है. यस सर. करेक्ट बेटा. यस सर. इस यहाँ पर क्या हुआ, या व्हाट इज द लिवर हियर? नेट. नाउ दिस इज फॉर द नेट लिवर. ये तो नेट लिवर रह गया ना, नेट ऑफ राइटिंग लिवर एंड अपसेटिंग लिवर, करेक्ट? अपसेटिंग लिवर, यस सर. ठीक है. तो यहाँ पर लिवर कितना है? 0. अप्रोक्सीमेटली 0. हाँ. अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली. हाँ 0, एग्जैक्टली 0. हाँ, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इस एंगल ऑफ हील पे जो भी है, इस एंगल ऑफ हील पे मेरा राइटिंग लिवर और अपसेटिंग लिवर बराबर हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्टेंट विल बी 0. यस सर. एंड सो क्या हुआ, जब मेरा शिप अपराइट था, इधर से अपसेटिंग लिवर मूवमेंट एक्ट होना शुरू हुआ. उस अपसेटिंग मूवमेंट के चक्कर में शिप हील करता गया. शुरू में क्या था, राइटिंग लिवर कम था, अपसेटिंग ज्यादा था, तो रिजल्टेंट वाज अपसेटिंग वाज कंटिन्यूड हीलिंग. एट सम स्टेज द रिजल्टेंट लिवर हैज बिकम 0. Yes. When resultant liver becomes 0, resultant moment will become 0. Correct? Yes sir. Yes sir. And when resultant moment will become 0, that is the angle at which vessel will strike a new equilibrium, right? In the healed condition. That is known as angle of Lowell. अरे यार, angle of Lowell कहाँ से आ गया इसमें? This is the angle at which she will lie healed because of the upsetting moment. Okay. तुझे एंगल ऑफ लॉल से क्या फिक्सेशन है भाई? वो बड़ी, उसको इतना मत, जहां मन करे मत बोल दो, वो बहुत बड़ी चीज है. एंगल ऑफ लॉल को रहने दो. आई एम जस्ट सेइंग, अभी ये जहाज यहां से इधर से पुश हो रहा था. इट वाज द अपसेटिंग मोमेंट व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर हीलिंग. इफ दिस अपसेटिंग मोमेंट वाज नॉट देयर, द वेसल वुड हैव रिमेन्ड अपराइट, करेक्ट? यस सर. ये 4500 टन मीटर इधर से लगा, which resulted into a liver of 0.243. Writing moment यहाँ 0 था, because writing liver 0 था, तो net result was it inclined the ship. Yes sir. Let us say she went to 5 degrees. अब 5 degrees angle of heel पे फिर देखो, again the writing liver is still short of the capsizing liver or upsetting liver, right? Yes sir. So that means अभी भी resultant जो है वो upsetting moment ही होगा. Yes, राइटिंग मोमेंट कम है, अपसेटिंग मोमेंट 5 डिग्री पे अभी भी ज्यादा है, करेक्ट? यस सर, करेक्ट. इसका मतलब जहाज 5 डिग्री पे नहीं रुकेगा, जहाज 5 डिग्री से आगे जाएगा, करेक्ट? 10 से 10 डिग्री पे पहुंचा. 10 डिग्री पे पहुंचा, फिर भी ज्यादा है. लिवर बना 0.193 राइटिंग लिवर, तो राइटिंग मोमेंट अभी भी कम है अपसेटिंग मोमेंट से. यस सर. करेक्ट? यस सर. अगर ये 15 डिग्री तक जाएगा या नहीं जाएगा? 15 डिग्री तक नहीं जाएगा, बिकॉज 15 डिग्री पे लिवर, राइटिंग लिवर इज मोर देन द अपसेटिंग लिवर. यस. तो 10 और 15 डिग्री के बीच में कहीं पर ऐसी सिचुएशन आएगी
जहां पर की राइटिंग मोमेंट अपसेटिंग मोमेंट के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो दिस विंड इज, लेट अस से दिस अपसेटिंग मोमेंट इज ट्राइंग टू हील द शिप, उतना ही राइटिंग मोमेंट इज ट्राइंग टू राइटन. Now the vessel will continue lying at this angle of heel instead of being upright. Now maybe she is lying heel to 12 degrees, 13 degrees, wherever this equilibrium is achieved, right? Yes sir. Correct, bhai? Yes sir. Yes sir. So that means this will be the angle of heel. This will be the angle of heel because of this upsetting moment, correct? Yes sir. अब एक ढंग तो ये है कि मैंने सारी की सारी वैल्यूज को 0.243 नीचे लेके आया और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. इसमें मैंने क्या किया है, अगर मैं शीट पे y एक्सिस और x एक्सिस को फिक्स कर दूं और ये कर्व अगर मेरी फ्लोटर शीट पे होती तो इट इज लाइक मूविंग द शिप डाउन बाय शीट बाय डाउन बाय 0.243 मीटर्स. यस और नो? Yes sir. अच्छा, अब दूसरी केस देखो, ये कर्व मेरी फिक्स्ड हो और ये दो एक्सिस मेरी फ्लोटर शीट पे हो, तो आई विल अचीव द सेम रिजल्ट इफ आई मूव दीज एक्सिस बाय 0.243 अप. बिल्कुल सर. करेक्ट? यस सर. जीरो हम ऊपर कर देंगे उसका. हाँ जी, उस कर्व को नीचे लाने के बजाय एक्स एक्सिस के रिलेशन में हम एक्स एक्सिस को ऊपर ले जाते हैं. दैट इज इजियर फॉर मी. सो वी विल नॉट डू इट बाय ड्राइंग दिस सेकंड कर्व. देयर इज नो नीड टू डू इट दिस वे. दिस वाज फॉर एक्सप्लेनेशन ओनली. व्हाट वी कैन डू इज इस एक्स एक्सिस को 0.243 मीटर्स यहां पर हम एक्स एक्सिस को ऊपर ले जाते हैं. करेक्ट? ओके, ठीक है सर. ये वैसी कर्व बन गई, या तो एक्स एक्सिस यहाँ रहती, कर्व नीचे आती, या कर्व वहीं रह गई, एक्स एक्सिस ऊपर चली गई. ऊपर आ गया. ठीक है सर. ठीक है. अब इस डायग्राम में दिस इज द राइटिंग लिवर कर्व. सो लेट्स आइडेंटिफाई व्हाट ऑल इज देयर इन दिस डायग्राम. दिस इज राइटिंग लिवर कर्व एंड दिस इज अपसेटिंग लिवर कर्व. इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन, नो माइंड. It's upsetting liver curve or whatever line diagram, whatever you want to call it. सर ये तो एक्सिस आपने ड्रॉ करी ना, एक्स एक्सिस. अरे तो कितनी ऊपर की? 1243. Okay, let me ask you. 0 डिग्री पे अपसेटिंग लिवर कितना है? 0.243. 5 डिग्री पे अपसेटिंग लिवर कितना है? 0.243. 10 डिग्री पे कितना है? 0.243. तो ये अपसेटिंग लिवर डायग्राम हो गई या नहीं हुई? यस सर. ओके, अब देखो यहां पर जहां ये इसको कट रही है, यहां पर क्या है? देखिए 0 पे अपसेट राइटिंग लिवर कम है, अपसेटिंग लिवर ज्यादा है. 5 डिग्री पे राइटिंग लिवर कम है, अपसेटिंग लिवर ज्यादा है. 10 डिग्री पे अपसेटिंग लिवर ज्यादा है, राइटिंग लिवर कम है. करेक्ट? यस सर. इस एंगल पे, वॉट एवर दिस एंगल बी, इस एंगल पर ये दोनों के दोनों 0.243 इक्वल हो गए. यस सर. तो इस एंगल पर राइटिंग मोमेंट और अपसेटिंग मोमेंट बराबर हो जाएंगे. Yes sir. So that means this is the angle of heel because of this upsetting moment. चाहे 12 डिग्री 13 डिग्री जो भी कुछ तुम्हारा आए इस डायग्राम से, that is the angle of heel because of this upsetting moment of 4500 ton meter. तो इस 13 डिग्री आ रहा है सर डायग्राम पे करने पे. कितना? 13 डिग्री. हाँ ठीक है, 12 13 जितना भी आ रहा है बेटा, जो तुम्हारी डायग्राम से आएगा वो आंसर होगा. ठीक है. जो तुम्हारी डायग्राम से आएगा वो आंसर होगा. हाँ बोलो सर. राइटिंग मूवमेंट तो होता है कि सर जहाज हील हो गया तो उसको दोबारा अपराइट करने के लिए राइटिंग मूवमेंट लगती है सर, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स. A moment which tries to righten the ship is called righting movement. सर और अपसेटिंग मूवमेंट क्या होगी कि सर टू हील द शिप फॉर, मतलब Yes, that can be called as healing moment also, that can be called as upsetting moment also. ओके सर. ठीक है? Which is tending to upset the ship from the upright condition, right? ओके सर. अब इसमें पूछा है सर द चेंज इन रेंज ऑफ स्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब? पहले यार एंगल ऑफ ही पहला क्वेश्चन तो देख लेना बेटा. व्हाट इज द लिस्ट प्रोड्यूस्ड या हील? दैट इज एक्चुअली हील नॉट लिस्ट. क्या वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, वो क्या बोल रहा है? पूछ रहा हूँ सर. ये आपने सी पार्ट करवाया ना सर अभी? या हाँ सी पार्ट में दो सी पार्ट पूरा पढ़ो जरा. हाँ सर. द चेंज इन रेंज ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन अ कांस्टेंट अपसेटिंग मूवमेंट ऑफ 4500 टन्स मीटर इज अप्लाइड टू द शिप. करेक्ट. एंड वो एनीथिंग एल्स? The list produced by the above upsetting. Actually, this list word is wrong here. It should be heel produced. The heel produced will be 12 degrees or 13 degrees, whatever you're getting from your diagram. Okay? सर और नॉर्मली शिप में क्या होता है कि सर एंगल ऑफ वैनिशिंग स्टेबिलिटी से पहले कभी भी जितना भी अपसेटिंग मूवमेंट लगता है, कितनी भी ज्यादा विंड फोर्स आ जाए, कुछ आ जाए, जहाज अपराइट हो जाता है. तो मतलब इक्वल एंड अपोजिट राइटिंग लीवर लगता है, मतलब राइटिंग लीवर इज इक्वल टू अपसेटिंग मूवमेंट.
कब? सर जैसे नॉर्मली शिप की टेंडेंसी होती है अपराइट हो जाता है सर शिप। बेटा मैं तुम्हारा सेंटेंस ही नहीं समझा। वो तो अपराइट तो जब होगा ना जब अपसेटिंग मोमेंट विड्रॉ होगा। सर जैसे शिप हील हुआ, हील तो होने के बाद अरे हील हुआ तो जिस कारण से हील हुआ पहले तो वो दैट मोमेंट हैज टू स्टॉप एक्टिंग ना। इफ दैट मोमेंट कंटिन्यूज एक्टिंग, अगर एक मिनट अगर एक स्टेडी, सर को समझाने दे। एक मिनट अगर स्टेडी विंड है, अगर स्टेडी विंड है एक साइड से बीम से, ठीक है, और तो अगर एक साइड से, अच्छा ये बताओ स्टारबोर्ड साइड से अगर हील, ये सपोज ये जो अपसेटिंग मोमेंट है, सपोज ये विंड हीलिंग मोमेंट होता, बोलो भैया अगर विंड हीलिंग मोमेंट होता तो विंड हीलिंग मोमेंट तो तभी चेंज होगा ना जब विंड हटेगी या बढ़ेगी या घटेगी, करेक्ट? जी सर। जब तक विंड सेम रहेगी और विंडेज एरिया सेम रहेगा तो ये अपसेटिंग मोमेंट उतना ही रहेगा ना। जी जी सर। तो अगर अपसेटिंग मोमेंट विड्रॉ ही नहीं हो रहा तो वापस कैसे आएगा? बट व्हाट इज ओपोजिंग द हील इज द राइटिंग मोमेंट, करेक्ट? जी सर। तो कहां तक हील होगा? जहां पर जाके दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा नया। हाँ जी सर। और अगर वहां से अगर तुम विंड को हटा दोगे तो वो जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वर्क डन करने के कारण, जो कि इक्वल टू द राइटिंग मोमेंट है, दैट विल ट्राई टू ब्रिंग द वेसल बैक टू अपराइट, करेक्ट? जी सर। ओके, और पूछो। तो सर अगर जैसे इस एंगल, ये हमने एंगल निकाला जैसे सर 12 डिग्री और 13 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे अपसेटिंग मूवमेंट और राइटिंग मूवमेंट दोनों सेम हो चुके हैं, इसलिए that is the angle of heel at which the vessel will strike a new equilibrium. Instead of remaining upright, she will lie heel to 12 degrees or 13 degrees unless the heeling or upsetting moment changes. Okay sir. Understood? जी सर। ठीक है। The first, हाँ बेटा सर एक और समझा दीजिए सर। सर ये आपने मैक्सिमम जो फ्रॉम द कर्व फाइंड द मैक्सिमम जीजेड एंड द एंगल ऑफ हील एट विच इट अकर्स। तो सर ये तो हम जो 0 to 70 डिग्री में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है सर उसको ले लेंगे ना सर? क्यों ले लेंगे? परसों भी बात हुई थी इसकी, आज भी बात हुई है। नहीं सर, मतलब निकाला कैसे सर आपने, मतलब ये नहीं समझ में आया सर। नहीं तो एक बात बताओ, फिर पता है क्या थोड़ी देर बाद कहेगा थर्ड पार्ट आप समझा दो सर। जब फर्स्ट पार्ट कर रहे थे यार, मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट पार्ट कर रहे थे तो कहाँ गया था? सर मैं इधर ही था सर। तो फिर व्हाई यू डिड नॉट आस्क देन? सर उसके बाद कंटिन्यूअसली चलता रहा ना सर, तो इसलिए नहीं कंटिन्यूअसली तो अभी भी चल रहा था, फिर व्हाई आर यू आस्किंग नाउ देन? इज देयर अ ब्रेक नाउ? नो सर। Then don't give these stupid arguments here all the time. अब थर्ड पार्ट हो रहा है तो फर्स्ट के ऊपर अटका हुआ है। सर फर्स्ट नहीं सर थर्ड का फर्स्ट। अरे थर्ड का फर्स्ट कौन सा है? थर्ड का फर्स्ट इज मैक्सिमम जीजेड निकालना है एट द एंगल ऑफ हील एट व्हिच इट अकर्स। तो मैक्सिमम जीजेड, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हो गया। एक मिनट वो जब कर्व ड्रॉ करने के बाद जब हमने ये निकाला था 0.61 या जो भी 0.61 या 0.62, वेयर वर यू दैट टाइम यार? सर क्लास में था सर। तो तुम्हारा कितना आया था घर पे? तुमने किया होगा ना क्वेश्चन ये? सर आपने सिर्फ 2 पार्ट बोले थे सर करने के लिए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड आपने बताने के लिए बोला। ओके सो फर्स्ट डे आपने 4 पॉइंट लिखे थे, उनमें एक पॉइंट लिखा था ना, फ्रॉम द कर्व यू कैन फाइंड द मैक्सिमम जीजेड। जी सर। वो क्या था पॉइंट? हाउ टू फाइंड दैट? सर आपने पॉइंट लिखवाए थे सर बस। हाँ तो अरे उस दिन डायग्राम पे ड्रॉ किया था, क्या बात कर रहे हो? पॉइंट लिखवाए थे, मुझे याद है मैं क्या करता हूँ यार। सर ये लिखवाया था सर, फ्रॉम जीजेड कर्व वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीजेड फ्रॉम जीजेड कर्व। एंड हाउ टू फाइंड वो नहीं बताया था बोर्ड पे? दैट वाज नेवर टोल्ड। सर याद नहीं था सर। देखो दो चीजें, फर्स्ट लेक्चर में तुमने नहीं सुना, आज जब वो डिस्कस हो रहा था उस टाइम तुमने नहीं पूछा, मतलब दिस इज sheer disruption. If I don't mind repeating does not mean that gives you a license to be absolutely complacent and not do anything.
मैंने लिखवाया नहीं था, मैंने समझाया भी था। एंड जब मैं थर्ड समझा रहा हूं फिर उसके बाद कहेगा मुझे थर्ड समझ में नहीं आया। जब मैं अगला फोर्थ पार्ट पे चला जाऊंगा तो फिर मुझे थर्ड पे लेके आएगा। Instead of focusing what is being explained, you're not focusing there and you're going somewhere else here. Can you explain me the third part that we have discussed so far? First को छोड़ दो, हाँ बताओ क्या सर समझ में? सर अपसेटिंग मूवमेंट लग रही है सर 4500 टन। नहीं, इसमें हमने क्या निकाला, रिजल्ट बताओ फाइनली क्या रिजल्ट निकाला हमने? सर एंगल ऑफ हिल निकाला है एट व्हिच इट विल रीच द एक्सपीरियंस फोर्स। हाँ, so you're okay with it? थोड़ी देर बाद मुझे थर्ड पार्ट तो नहीं कहेगा, ये भी समझा दो। नहीं सर। यार मतलब इतनी बेवकूफियां नहीं मतलब टॉलरेट होती मुझसे ना, मतलब एक प्रोफेशनल के साथ इतनी कैजुअल तो नहीं होना चाहिए बंदे को यार। ऐसे थोड़ी होता है जैसे तुम लोग बिल्कुल बचकानी हरकतें करते हो। एक कर्व से अगर मुझे मैक्सिमम जीजेड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? इट्स नो ब्लडी रॉकेट साइंस, कैसे निकलेगा बताओ? सर जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है सर उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे सर। पहले हाईएस्ट पॉइंट निकालेंगे कैसे? सर कर्व बना के। कैसे निकालोगे हाईएस्ट पॉइंट? पता कैसे चलेगा क्या हाईएस्ट पॉइंट है? Sir, highest point will be between the 40 and 45 degrees, sir. But how will you know which is that highest point between 40 and 45? बेटा वही तो पूछ रहा हूँ। Let me also give you a hint. मैंने कहा सर अब y-axis x-axis पे। x-axis पे नहीं, x-axis के पैरेलल हाईएस्ट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हाँ जी सर, और जहाँ पे वो टेंजेंट जैसे चार्ट वर्क में सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वहां पर तो टेंजेंट की डायरेक्शन पॉइंट जहां से ड्रॉ करते हैं और सर्कल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन तो पता है, वो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जी सर। और कहां से ड्रॉ करनी है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। यस सर। तो वो कर लोगे? हाँ जी सर। अगर तुम्हारे पास पैरेलल रूलर होता या रोलर होता तो एक्स एक्सिस पे रूलर लगाओ और उसको ऐसे ऊपर स्लाइड कर ले जाओ ताकि वो हाईएस्ट पॉइंट के साथ कोइंसाइड करे, वहां पे ड्रॉ कर दो। दैट विल बी द टेंजेंट टू द हाईएस्ट पॉइंट, राइट? जी सर। ठीक है, और जब ये अगर टेंजेंट हो गई तो जहां ये इसको काटेगी ये चीज क्या होगा? सर मैक्सिमम जीजेड वैल्यू। ओके, और जहां पर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, अगर उसको नीचे पढ़ेंगे तो क्या होगा? सर एंगल ऑफ हील एट व्हिच द मैक्सिमम जीजेड विल अकर। तो यही तो था यार, इतना काहे को परेशान हो रहा है? सर क्लियर करना था सर, डाउट थी इसलिए। Anyway, now the so this is this finding of the list or angle of heel. This list is not appropriate technically. This angle of heel caused because of this upsetting lever of 4500 ton meter. This 13 degrees. Any questions on this? बेटा यहाँ पूछना तो पूछो किसी को। नहीं, okay. Before the upsetting moment was acting, what was the angle of vanishing stability? 76 degree. 76 degrees, 77, हाँ 7, ठीक है तुम्हारा था। So what was the range of positive stability before the upsetting moment came into existence? 77 degrees? 0 to 77, yes So sir. range was 77 degrees or 76 degrees, whatever you want to say, right? Yes sir. Yes sir, yes sir. Correct. And what is this range of positive stability? It is that range of angle of heel over which GZ remains positive, right? Of course sir. Yes, understood. Correct. अब जब अपसेटिंग मोमेंट आ गया तो हम GZ की बजाय अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? नेट लीवर पे। नेट लीवर। करेक्ट। यस सर। इस डायग्राम में देख के बताओ कि नेट लीवर किस एंगल ऑफ हील से और किस एंगल ऑफ हील के बीच में पॉजिटिव होगा? 12 डिग्री से पॉजिटिव स्टार्ट है सर। और कहां तक? अगर अप्रोक्सीमेटली इसमें देखा जाए 67 68। Does everybody agree? बेटा इस पर एक मिनट यहाँ क्वेश्चन पूछ लेंगे because people may not be with me. बेटा मैंने क्या कहा है कि नेट लिवर will be positive between which angles of heel after the upsetting moment starts acting. It will remain because x-axis has been virtually transferred here. So that means इससे पहले
एंगल ऑफ हील पे द नेट रिजल्ट वुड बी नेगेटिव एंड इट विल कंटिन्यू हीलिंग द शिप, करेक्ट? इस यहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा और यहां पर वेसल 12-13 डिग्री पे हील हो जाएगा। अब 12-13 डिग्री के बाद अगर कोई एक वेव उसको लगती है और हील करती है तो नेट रिजल्ट जो लिवर है वो लिवर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट बेटा? यू कैन सी दिस हियर। यस सर, वो अपराइट करेगा। Yeah, and this will upright that will try to bring it back to 12 degrees or 13 degrees, right? यस सर। Okay. ग्राफ तो 12 डिग्री से शुरू हो रहा है ना। हाँ, तो अब तू जैसे भी याद करना वो कर ले, बट आई विल जस्ट यूज द टेक्निकल थिंग कि ग्राफ तो 0 से शुरू हो रहा है, बट यहां से यहां तक नेट लिवर जो था वो नेगेटिव था। नेगेटिव है, जो नीचे तो यहाँ पे क्या हो रहा था? बिकॉज ऑफ दैट अपसेटिंग मोमेंट द शिप वाज कंटिन्यूइंग टू इंक्लाइन। यस सर। 12 डिग्रीज पे एंगल ऑफ हील पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है? नाउ द शिप इज लाइंग 12 डिग्रीज, let us say I'm this starboard port, I'm just using an example. Let us say the ship is lying 12 degrees heel to starboard. Yes sir. Okay. अब बेटा starboard से ही अगर एक वेव लगेगी, उसको मारती है, इंपैक्ट करती है वेव, एक हिट करके चली जाती है, तो उसकी जो हील है 12 से कम होगी या ज्यादा होगी अगर starboard से हिट मारती है तो? सर 12 से कम होगी। 12 से कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि जो वेव का जो मोमेंट था वो राइटिंग मोमेंट को सपोर्ट, वेव का जो मोमेंट था वो राइटिंग मोमेंट को सप्लीमेंट कर रहा है, करेक्ट? यस सर। और शिप में भी 5 डिग्री तक आई, तब तक वेव चली गई। जैसे वेव चली गई अब फिर वापस ये 12 डिग्री पे आ जाएगा। व्हाई? 12 डिग्री पे आ जाएगा बिकॉज़ द रिजल्टेंट इज स्टिल द अपसेटिंग मोमेंट ऑफ 4500 टन मीटर इज देयर कंसिस्टेंटली एक्टिंग, करेक्ट? लेकिन अगर शिप 12 डिग्री पे पड़ा है स्टारबोर्ड साइड में, और अब इसमें एक मिनट, स्टारबोर्ड साइड में हील्ड है, या स्टारबोर्ड साइड में हील्ड है और पोर्ट साइड से वेव मारती है इसको, तो ये जो वेव स्टारबोर्ड में आ जाएगा, जो वेव का मोमेंट है, विल दैट supplement the righting moment or would that supplement the upsetting moment? Upsetting moment को supplement करेगी। Upsetting moment को तो supplement इसका मतलब जहाज जो है 12-13 डिग्री से ज्यादा हील करेगा। यस सर। लेकिन वेव जो थी वो कंसिस्टेंटली एक्ट नहीं कर रही, वेव हिट करके चली गई, तो बिकॉज ऑफ दिस नेट पॉजिटिव जीजेड, जैसे ही वेव जाएगी शिप विल कम बैक एंड सेटल एट 12 डिग्रीज और 13 डिग्रीज, राइट? यस सर, राइट, करेक्ट सर। इसमें एक चीज ये पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि अगर हमारा स्टारबोर्ड साइड लिस्ट है, ऑलरेडी 12 डिग्री हील है, 12 डिग्री पे, तो हमारा पोर्ट साइड से आपने बोला कि वेव आई तो वो सप्लीमेंट करेगी अपसेटिंग लीवर को, बट जब और स्टारबोर्ड साइड हील जाएगा तो सर जीजेड भी तो हमारा बढ़ेगा ना जी? तो ये जीजेड तो बढ़ रहा है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, वेव हिट करके चली गई, इसीलिए तो एक मिनट मैं इसको बताता हूँ। हमारा 4500 टन, लेट मी गिव वैल्यूज, हमारा 4500 टन मीटर का अपसेटिंग लीवर कंसिस्टेंट है, स्टेडी है। यस सर। ठीक है, शिप 12 इस 4500 टन मीटर के चक्कर में 12 डिग्री स्टारबोर्ड साइड में हील पड़ा है इक्विलिब्रियम में। यस सर। ठीक है, अब पोर्ट साइड से 1000 टन मीटर का एक वेव का इंपैक्ट आया। ओके। अब टोटल अपसेटिंग मोमेंट हो गया 45 प्लस 1000 55। यस सर। 45 तो यहां तक नलीफाई हो चुका था 12 डिग्री लिस्ट तक। 1000 के लिए शिप और हील करेगा। यस सर। कब तक हील करेगा? जहां तक की जो राइटिंग मोमेंट है वो 5500 टन मीटर के बराबर ना हो जाए। yes, लेकिन शिप गया वहां तक, लेकिन क्या हुआ? 1000 टन मीटर विड्रॉ हो गया बिकॉज वो टेम्पररी। ओके, तो वो वापस ग्राफ में नीचे आ गया। because of this net positive thing, it will get back to 12-13 degrees. क्योंकि वो ज्यादा है, अभी राइटिंग मूवमेंट ज्यादा है हमारा, अब जब विड्रॉ हो गया वो 1000 टन मीटर, तो वापस आ गया। तो इस एंगल पे तुम्हारा राइटिंग मोमेंट तो है 4500 टन मीटर, आपका ऑफसेटिंग मीटर है 4500, तो 1000 का सरप्लस है, वो इसको वापस लेके आएगा, यहाँ पर वापस लेके आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ? इस डायग्राम में मेरा, अब मैं देखो अब समझाने के लिए यूज वर्ड कर रहा हूं, ये हमारा नेट लिवर पॉजिटिव किस एंगल पे शुरू होता है? नेट लिवर पॉजिटिव शुरू होता है 12 डिग्री पे, या तुम्हारी ग्राफ से जो भी आया। यस सर। और ये नेट लिवर पॉजिटिव कब तक रहता है? इस एंगल तक, तुम्हारी ग्राफ से 67 68 जो भी कुछ आया। यस सर।
तो under the influence of this upsetting moment, the righting lever, net righting lever remains positive in this range, correct? Yes, sir. Yes, sir. That means 12 degrees to 67 degrees. Yes, Correct? sir. So as long as this upsetting moment remains in place, the range of positive lever or range of positive stability would be from 12 degrees to 67 degrees. That means the range will be 55 degrees only. Yes, sir. पहले 77 78. This was the range of positive Range stability, 77, yes, sir. which is now reduced to this much. 55 degrees. Correct. 67 तक जो भी है basically Correct. वो range कम हो गई. So the range of positive stability is reduced from 77 degrees to maybe 55 degrees now. So that is the answer to that question which was asking कि range of positive stability क्या होगी after the upsetting moment comes into picture. Is that clear? Yes, sir. सर एक अभी आप करा रहे हो और कुछ अगला टॉपिक? नहीं बोलो, पहले इस पे डाउट है तो पहले इस पे खत्म करो. इसमें डाउट सर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पता नहीं शायद आप गाली कौन सी दोगे. जो भी है, जो मन में आई वो दे दूंगा. सर लेकिन ये अगर हम ये जो y एक्सिस है जहां पे आपने 0.243 शुरू किया है, आपने ये जो ग्राफ प्लॉट किया ये करा है y इज इक्वल टू 0.243, ये आपने ग्राफ प्लॉट किया है, करेक्ट? ये अपसेटिंग लीवर कर्व. यस सर, ये कर्व आपने ड्रॉ किया है, ओके. लेकिन अगर हम इसका रेप्लिका जो पहले वाला राइटिंग लीवर वाला ग्राफ है उसका ही रेप्लिका हम 0.243 से स्टार्ट करके ऊपर से जैसे हम पहले माइनस 0.243 से स्टार्ट करोगे, माइनस 0.243 तो वो भी यही काटेगी 12 पे. तो मैं फिर कान इतना घुमा के क्यों पकड़ूं, सीधा नहीं पकड़ना आता क्या? नहीं मैं वो तो ठीक है सर, वो तो काटेगी. और वो देखो उसका मतलब क्या होगा? एक मिनट बेटा, अगर तू यहाँ से कर्व लाएगा तो वो ऐसे जाके और यहाँ 67 पे ऐसे नीचे आ जाएगी, तो रेंज ऑफ पॉजिटिव स्टेबिलिटी इतनी रह जाएगी. वो तो सर रह जाएगी, लेकिन उस कर्व का मतलब अभी जो आपने कर्व बनाया ये है y इज इक्वल टू 0.243 ये बनाया आपने कर्व, लेकिन उस कर्व का मतलब क्या होता? क्योंकि हमारा राइटिंग लीवर तो बढ़ नहीं रहा है. उस कर्व का मतलब ये, अपसेटिंग लीवर तो हमारा बढ़ नहीं रहा है. अरे उस कर्व का मतलब ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ जिस साइड वेसल हील हुआ है उस साइड शिप की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो गई है. ओके. क्योंकि अगर वो 12 डिग्री स्टारबोर्ड साइड में ऑलरेडी हील्ड है, यस सर, तो वो ऑलरेडी इसका इट इज एज इफ द एक्स एक्सिस हैज बीन टेकन अप और द कर्व हैज बीन ब्रॉट डाउन फॉर द स्टारबोर्ड साइड. यस सर, करेक्ट सर. फॉर पोर्ट साइड द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पोर्ट साइड स्टेबिलिटी बिकॉज़ हमें स्टेबिलिटी किस साइड की पकड़नी है, जिस साइड कम होगी. करेक्ट. तो इट इज बेसिकली अगर स्टारबोर्ड साइड हील है या पोर्ट साइड हील है, जिस साइड भी हील है उस तरफ इट इज एज इफ अगर कर्व को नीचे ले आऊं तो जीजेड कर्व मेरा वो हुआ है, कंप्रेस हुआ है, नीचे आया है, तो मेरा उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो गई ना. यस सर, करेक्ट, ऑन दैट साइड. यस सर. तो वही चीज इसको नीचे लाने के बजाय हम एक्स एक्सिस को ऊपर लेके चले गए, व्हिच इज इजियर फॉर मी टू स्टडी. हां सर, वो नहीं सर, ये तो सर बात आपकी पहले ही समझ गया, ये तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि हम डाउट बोलो. डाउट ये है सर, जो अपसेटिंग लीवर जो अगर आप इस कर्व को नीचे लेके जाओगे तो इसका मतलब अपसेटिंग लीवर भी तो बढ़ रहा है ना. एज क्यों अपसेटिंग लीवर क्यों बढ़ेगा? अपसेटिंग लीवर तो जब तक अपसेटिंग मोमेंट 4500 टन मीटर रहेगा तो और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा. इसका सर मैं यही तो चीज कह रहा हूँ कि अगर आप सेम रेप्लिका ग्राफ नीचे बनाओगे तो अपसेटिंग लीवर जैसे से ऊपर जाएगा, इसका मतलब वो बढ़ रहा है ना जीजेड वाली लाइन पे. क्यों? जो तुम ये ड्रॉ करोगे ना, दैट विल बी द रिजल्टेंट जीजेड बेटा. ये जो ड्रॉ करोगे निश्चित तो कंफ्यूज हो रहा है, निश्चित तो कंफ्यूज हो रहा है. दिस इज द रिजल्टेंट जीजेड. मैं ये टर्म नहीं सोच पा रहा था. ओके, कंफ्यूज हो गया, बहुत कंफ्यूज कर दिया. नहीं, एक मिनट, दिस इज द रिजल्टेंट जीजेड बेटा. हां ठीक है सर, ठीक है, ये वाली टर्म नहीं सोच पा रहा. मैं समझ गया सर, समझ गया, अभी समझ गया. And which is the same as you study this curve with respect to this x-axis. This x-axis, yes sir, अभी समझ गया. ठीक है, ओके. और कुछ? बस सर ये क्वेश्चन था. हाँ बोलो सर. जब वेसल वेव से हील होके ये जो सेकंड पॉइंट है 69 डिग्री 68 डिग्री पे पहुंचेगा,
तो सर वो दूसरे इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि नहीं वहां पे तो अपसेटिंग मोमेंट और राइटिंग मोमेंट उसके बाद उसकी रेंज ऑफ पॉजिटिव स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, एंड इफ इट क्रॉसेस दैट 67 68 ऑन द साइड ऑन व्हिच शी इज यील्ड, देयर इज नथिंग that is going to bring her back then, unless the upsetting lever completely withdraws. Correct? ओके ओके यस ये 4500 टन मीटर अगर लगता रहेगा और उसके साथ में और कुछ इंपैक्ट आया, चाहे वेव आई या कुछ भी आई, और उसने जहाज को इस 67 डिग्रीज के बाद हील कर दिया और वो 4500 टन रिमेन्स देयर ओनली, देन देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द वेसल बैक ना. Range of positive stability will, this will be the angle of vanishing stability on that side. यस सर 67 degrees will be the angle of vanishing stability on that side, right? Yes, sir. So, sir, in that situation, how will be the ship? Ship will be in equilibrium situation at 69 degree. नहीं, she will not be in equilibrium situation. वहां पर जो 4500 से ऊपर जो भी चीज लगी थी, ठीक है, 4500 टन तो मान लो तुम्हारा स्टेडी मोमेंट है, ओके. 4500 टन मीटर जो स्टेडी मोमेंट है उसने तो तुम्हें चलो 12 डिग्री तक ले गया, ठीक है बेटा. यस सर. मान लो उसके बाद 10,000 टन मीटर उस पे और लग गया उसी साइड किसी वेव से, और कितना जा सकता और है. उसके चक्कर में जहाज 67 या 67 के बाद चला गया. सर यहाँ पे जीजेड और वो दोनों अपसेटिंग और राइटिंग मोमेंट दोनों इक्वल हो गए ना सर. अरे यार वो दोनों इक्वल तो हो गए हैं, बट वापस क्या लेके आएगा उसको वहां. उसके बाद देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग हर बैक ना. उसके बाद और बढ़ेगा तो और नेगेटिव हो जाएगा ना वो, मतलब उसके बाद उसके बाद तुम्हारा राइटिंग लीवर फिर कम होना शुरू हो गया ना अपसेटिंग से. यस योर अपसेटिंग लीवर विल रिमेन दिस. सो इवन जो 10,000 टन मीटर एक्स्ट्रा लगा था उसको अगर विड्रॉ कर लोगे और अब खाली 45 जाएगा तो यहां से वो वापस नहीं आ सकता ना जहाज. व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग हर बैक? नथिंग. यस दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, और अगर इसको क्रॉस कर गया तो the damn thing gets converted into That will be capsizing. capsizing. It will get converted into capsizing lever, right? Yes sir. तो बेसिकली अगर तुम्हें मैं सिंपल ढंग से बताऊं, जिस साइड जहाज हील हुआ है बिकॉज ऑफ अपसेटिंग लेवर, उस साइड में एक तरह से एक्स एक्सिस यहां से उठ के एक्स एक्सिस यहां चली गई है, कर्व बाकी की वैसे रह गई. अच्छा सर, कैप्साइजिंग लीवर जब चालू हो जाता है एक्ट करना तो उसके बाद में वेसल कैप्साइज हो जाती है या फिर? हाँ, फिर क्या कैप्साइजिंग लीवर आ गया तो फिर क्या बचेगा बेटा? कुछ नहीं बचेगा फिर. ओके, और सोच लो एक बार, कुछ और डिस्कशन करना तो वी कैन डू ऑन दिस. ओके, अब ये बताओ लास्ट पार्ट क्या है इसका? पहले तो ये बताया द लिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अबव अपसेटिंग मोमेंट. बता तो दिया. वो आ गया हमारा 12 डिग्री. बता. उसके बाद है स्टेट वेदर द शिप फुलफिल्स क्राइटेरियन रिगार्डिंग द एरिया अप टू 30 डिग्रीज ऑफ द मिनिमम स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड ऑफ इंटैक्ट स्टेबिलिटी. अब आप ऐसा कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी बुक के 5 नंबर पेज पे जाइए. स्टेबिलिटी टेबल के सर? स्टेबिलिटी बुकलेट के 5 नंबर. ठीक है सर. ऑल ऑफ यू गो टू पेज नंबर 5 बेटा. क्या लिखा है ऊपर? स्पेशल नोट्स रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी एंड लोडिंग ऑफ द शिप. और नीचे एक जीजेड कर्व ड्रॉन है. हाँ सर, स्टैटिकल स्टेबिलिटी कर्व. करेक्ट. एवरीबॉडी इज देयर ऑन दैट पेज बेटा, ताकि तुम भूल भी जाओ तो एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो. प्लीज गो टू पेज 5. देख लिया सर. अब हमने 2 दिन में ये सीखा था कि डायनेमिकल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एरिया अंडर द जीजेड कर्व. अब हर बार सी जो ऑपरेटर है डायनेमिकल स्टेबिलिटी मल्टीप्लाई करके थोड़ी कैलकुलेट करता रहेगा. आईएमओ ने जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बनाया उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर मैं जीजेड कर्व के नीचे कुछ मिनिमम एरिया एश्योर कर दूं तो सर्टेन मिनिमम एरिया will assure certain minimum dynamical stability, yes or no? Because dynamical stability is area up to that angle under the GZ curve multiplied by displacement. Yes sir. Yes sir. तो अगर मैं मिनिमम एरिया एश्योर कर दूं, मैं कह दूंगा आपके इंस्टेड ऑफ सेइंग यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ डायनेमिकल स्टेबिलिटी एट सो 30 डिग्रीज एंगल ऑफ हील ऑफ सो मेनी टन मीटर, ये कहने के बजाय अगर मैं कह दूं 30 डिग्री पे आपका एरिया अंडर द जीजेड कर्व अप टू 30 डिग्रीज शुड नॉट बी लेस देन दिस,
that means it's indirectly implying that you have ensured certain minimum dynamical stability. Yes or no? Yes sir. Correct बेटा? सही बात वापस एक्सप्लेन करेंगे सर. हाँ हाँ मैं बेटा डायनेमिकल स्टेबिलिटी उस दिन हमने कैसे निकाली थी, जरा एक बार रिपीट करो, जरा कोशिश करो. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डायनेमिकल स्टेबिलिटी निकाली थी ना, उस दिन सीखा था. सर जो हमारा 1 रेडियन था, अरे फॉर्मूला बता दे खाली सीधा. 1 रेडियन नहीं, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट था सर. एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट. एरिया नहीं, पूरा बोलोगे बेटा, ओरल्स में एरिया अंडर द कर्व. Area under the GZ curve up to that angle of heel, the required angle of heel, yes, in meter radian. In meter radian multiplied by displacement. Correct? Displacement. Yes sir. Okay. अब आप क्या चाहोगे? IMO क्या चाहेगा कि before the ship proceeds to sea, she should have some minimum dynamical stability. Why? Because जहाज में अगर dynamical stability कम होगी तो एक हल्की सी वेव ही जहाज को बहुत ज्यादा हील कर देगी. Yes sir. So you would like the ship to have certain minimum dynamical stability so that the safety of life and cargo and environment can be ensured or assured, right? Yes sir. तो एक ढंग तो ये था, वो कह देते ship up to 30 degrees of angle of heel must have so much of dynamical stability in ton meter. Correct बेटा? Yes sir. एक तो उससे हो सकता था. दूसरा क्या है? Since it is directly proportional to area under the GZ curve, the same thing can be ensured by just carrying out a check on the minimum area under the GZ curve up to a certain angle of heel. Correct? Yes sir. ठीक है भाई? Yes sir. तो IMO ने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए, वही डायनेमिकल स्टेबिलिटी वाले को एड्रेस करने के लिए इन्होंने कहा कि शिप का जो GZ कर्व होगा उसमें एरिया अंडर द कर्व up to 30 degrees angle of heel shall not be less than 0.055 मीटर रेडियन. इसके नीचे नोट्स में जाके देखो, पढ़ो नीचे लाइन होगा. एरिया अंडर कर्व अप टू 30 डिग्रीज टू बी नॉट लेस देन 0.055 मीटर रेडियन. करेक्ट. अगर आपकी कंडीशन जो आपकी शिप की है, आपने जीजेड कर्व ड्रॉ की और उसका 30 डिग्रीज तक area under the curve happens to be less than 0.055 meter radians, that means you are not compliant. You'll have to make changes to become compliant before you proceed to sea. Yes sir. ठीक है. तो क्या मतलब हुआ? अब ये अपसेटिंग लीवर वाला ये क्लियर कर देते हैं यहां से बोर्ड सारा. What is he saying basically? कि आपको 30 डिग्री तक ये एरिया कैलकुलेट करना है और ये जो एरिया है अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.055 रेडियन है तो यू आर ओके, एल्स यू आर नॉट. राइट? करेक्ट सर. तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखो सारे ऑर्डिनेट्स ही हैं. हम लोग क्या करेंगे? 30 डिग्री तक करना है. इसको छोड़ दो जल्दी करने के लिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो. 1 2 3 4 ऑर्डिनेट्स पर रूल 2 लगाओ, मीटर रेडियन में एरिया निकालो. ये हमने उस दिन डायनेमिकल स्टेबिलिटी के टाइम किया हुआ है बेटा. कितना आता है? स्किप कर सकते हैं क्या सर हम? जैसे हाँ 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 हाँ, वो जितना इंटरवल छोटा होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. दैट्स ऑल. राइट? यस सर. हाँ बिल्कुल कर सर. बट वो एक्यूरेसी का भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अरे यार इतना नहीं फर्क पड़ता, तुम टेंशन मत करो, तुम इसको निकालो. तुझे करना, यू वांट टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7. तुझे करना है रूल 1, तो रूल 1 लगा ले बेटा, तेरे को करना है तो. Sir, I'm not saying you can't include them. I'm saying you just leave them out for expediting your working. Yes sir. Okay. I'm not saying तुम include करोगे तो गलत हो जाएगा. I didn't say that. Okay sir. You can leave that out यार. एरिया ओके, तो इनका सम हो गया. कितना है एसओपी एरिया? चेक करवा लेना बोल के बीच में क्लास को. यस सर, निकाल रहा हूँ सर, एक मिनट. सर सर जो आपने बताया था डायनेमिकल स्टेबिलिटी, वो तो होता है ना कि सर वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेक द वेसल हील टू अ पर्टिकुलर एंगल. करेक्ट. तो सर यहाँ पे एरिया तो हम निकाल लेंगे अगर पूछा है कि डायनेमिकल स्टेबिलिटी अप टू 30 मीटर्स, बट ये ग्रेटर देन 0.55 ये क्या सर? ये एरिया शुड नॉट बी लेस देन दिस. सर कोई भी area under the GZ curve up to 30 degrees should not be less than 0.055 meter radian, right?
पर सर ये तो किसी पर्टिकुलर शिप की वैल्यू है ना सर, हर शिप के लिए थोड़ा हर शिप का ये नहीं, ये IMO के क्राइटेरिया है बेटा, which apply to every ship. This is the minimum intact stability criteria which the ships have to fulfill before proceeding to sea. 8.359 रेडियन। एक मिनट इसको पूछ लेंगे कुछ। हाँ बोल बोल बेटा। सर और अगर ये 0.055 से कम हुआ तो सर? तो आप शिप कैन नॉट सेल आउट, यू विल हैव टू मेक चेंजेस, अपनी केजी वगैरह चेंज करो, अपनी कंडीशन चेंज करो, सो दैट यू बिकम कंप्लायंट बेटा। सर वो समझ गए सर, पर उससे होगा क्या सर? क्या होगा मतलब? सर अगर लेस देन 0.055 बेटा तो शिप की डायनेमिकल स्टेबिलिटी इज नॉट ऑफ एक्सेप्टेबल लिमिट्स ना एज पर IMO। देखिए क्या होता है बेटा, क्या होता है कि जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो जो सेफ्टी कमेटी होती है MSC वगैरह, दे सिट, दे एनालाइज द केसेस एंड दे सी कि अच्छा ये कैजुअलिटी रिपोर्ट का क्या फाइंडिंग था, ये कैजुअलिटी इन्वेस्टिगेशन का क्या फाइंडिंग था, ये किसका फाइंडिंग था, राइट? बेस्ड ऑन डेटा दैट यू कलेक्ट, you basically try and sit down and analyze कि यार ये 4 जहाज जो थे ना, इनका root cause of their loss was they did not have adequate dynamical stability। आपने ये चीज आइडेंटिफाई की, उसके बाद आपने कहा यार ये जो बाकी के जहाज थे, आपने 10 20 50 जहाजों का डेटा और लिया, आपने देखा ये जो सारे जहाज थे ये एक सर्टेन डायनेमिकल स्टेबिलिटी रेंज में थे 30 डिग्री तक, they have been lost because of that, others could survive। So now based on the analysis of the data you say कि यार 30 डिग्री पे minimum area under the GZ curve कितना होना चाहिए, which in other words says आपका basically this is indirect way of controlling your dynamical stability, minimum dynamical stability, right? Did you understand, get what I said? या अभी भी कुछ बीच में मिस हो गया? सर तो ये जो है ये IMO का इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया विच एवरी वेसल हैज टू सेटिस्फाई। कोई वो GRT या किसी और चीज की बात नहीं करता ना कि मतलब इतना GRT के लिए इतना, ऐसा कुछ नहीं है, बस 0.055 चाहे जो मर्जी हो आपका, बाकी चीजें करेक्ट 0.055 से ऊपर। किसी स्पेशल टाइप शिप में इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, कम नहीं होगी। ओके सर, ओके। Tomorrow you find that grain ships require more stability because of the risk of shift of grain. You can have higher criteria for those special ships, but nothing can go beyond this, which is applicable to all ships, right? Yes, sir. This is not all. Other areas are also there. We'll deal with them when we reach there. So I'm not trying to mix up everything. Right now, what you're learning is reinforcing how to calculate area up to 30 degrees angle of heel, and then in meter radian कितना है तुम्हारा area? 8.359 मीटर। 0.146। हाँ 0.146 होगा मीटर रेडियन। भाई क्या बोल रहा है तू? एरिया निकाला है, नहीं किया गया, एरिया कैलकुलेट किया होगा। 0.139 एरिया ही तो पूछ रहे, एक मिनट, एरिया कैलकुलेट किया होगा तो एरिया ही तो पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं हम लोग? वो रेडियन से कम, वो तो नहीं किया होगा, चेंज नहीं किया होगा। मीटर रेडियन, इसीलिए एक एक स्टेप एक बार में हो रहा है ना यहाँ पे, बस फोकस इज ओनली आउट। 146 ना 143 कह रहे थे या 146 कह रहे थे? नहीं 146 ही, 146 ही है। ओके, सो एरिया अप टू 30 डिग्रीज इन दिस केस इज 0.146 मीटर रेडियन, एम आई करेक्ट? Is that more than this minimum required? Yes sir, more than that. So that means as far as this condition is concerned, the vessel is meeting this requirement. As far as this 30 degrees area is concerned, the vessel is compliant, right? Other issues we can discuss as we reach them in the next questions, right? Yes. बोलो सर, ये तो हर कर्व के लिए सर एक ही एरिया आएगा सर? क्यों आएगा? एक मिनट। हाँ जी। अगर कर्व ऐसे होगी तो सेम, दोनों का सेम एरिया होगा। जैसे से अलग होता जाएगा वैसे वैसे कर्व भी तो अलग होता जाएगा ना। एक मिनट, लेट मी आस्क, अरे छोड़ो एक मिनट, ये जो मैंने ब्लैक कर्व ड्रॉ किया है, हाँ जी, इसका 30 डिग्री का एंगल एरिया ये है, हाँ जी। इज इट सेम एज 0.146? ये इसमें तो ये एक्स्ट्रा भी तो था, ये कहाँ गया सर? हाँ ठीक है सर। तो वेसल की कर्व की शेप पे डिपेंड करेगा ना बेटा वो। ठीक है सर। जीजेड कर्व की शेप पे डिपेंड करेगा ना बच्चे। जी ठीक है। इट इज नॉट अलाउड टू बी लेस देन 0.055 मीटर रेडियन। ओके यस सर।
इसमें हर एक कंडीशन में पेज पे दे रखा है सर कि GZ कर्व अप टू 30 डिग्री इतना है मीटर रेडियन। और बाकी मैंने कहा कि जब पहुंचेंगे अगले क्वेश्चन में तब देख लेंगे। अभी तो ये है कि एक बार तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना तुम्हारा रीइंफोर्स हो जाए। ओके सर। ठीक है। कि जरा वो देखो, और क्या था हमारा, टाइम हो गया। टाइम हो गया, कोई बात नहीं। जरा अगला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या करके आना घर से। MV in shape in condition number 9 pumps out 100 tons of ballast each from number 2 port and number 2 starboard double bottom tank. Calculate a righting lever at 10 degree intervals up to an angle of heel of 40 degrees. ठीक है सर, ये तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री। ओके, तो ठीक है, चलो कल की क्लास में कर लेंगे, इसको रहने दो। यू जस्ट रीइंफोर्स व्हाटएवर हैज बीन डन अप टू दिस पॉइंट, राइट? ठीक है सर। ठीक है बेटा, ये जितना किया है उसको देख लो, पीछे के जो नोट्स हैं उनमें अगर कोई गैप है तो कल पहले बिफोर वी स्टार्ट द क्लास प्लीज हैव दैट सॉर्टेड आउट सो दैट ड्यूरिंग द क्लास यू डोंट हैव डाउट्स, अदरवाइज वो तुम्हें फिर तंग करते रहेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी तुम्हें परेशानी हो, जब वो उस पॉइंट को पे हो उसी टाइम उसको क्लैरिफाई कर लो, क्योंकि क्या होगा जब अगले पॉइंट पे तुम उसको सोचोगे तो जो अगला पॉइंट है वो भी पानी में गया, फिर you will again be struggling with the next point. So don't allow the baggage to just build up. You need to be very, very careful. ठीक है? Right, sir. Yes, sir. Okay, guys, I'm stopping the recording. You can leave the meeting. I'll push out. No issues. चलो, take care, बेटे. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, good.